नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मन की उलझन पर। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे पत्र की जिसे नेहरू जी ने अपनी बेटी इंदिरा जी के लिए जेल से लिखा था, उनके 13वें जन्मदिन पर। एक ऐसा पत्र जो आज भी प्रेरणादायक है। इस पत्र का पहला भाग हम लोग पहले वीडियो में सुन चुके हैं, तो आइए आखिरी भाग की शुरुआत करते हैं। The year you were born in 1917 was one of the miserable years of history when a great leader with a heart full of love and sympathy for the poor people suffering made his people write a noble and never to be forgotten chapter of history. In the every month in which you are born, Lenin started the Great Revolution which has changed the face of Russia and Siberia. And today in India, another great leader, also full of love for all who suffer, the passionately eager to help them, has inspired our people to great endeavor and noble sacrifice, so that they may again be free, and the starving and the poor and the oppressed may have their burden removed from them. Bapuji lies in prison, but the magic of his message stills into the hearts of Indians millions. And men and women and even little children come out of their little cells and become India's soldiers of freedom. In India, today we are making history, and you and I are fortunate to see this happening before our eyes and to take some part ourselves in this great drama. आइए इसी हिस्से को हिंदी में समझते हैं। जिस वर्ष तुम पैदा हुई, सन 1917, वो इतिहास का एक यादगार साल था। उस साल एक ऐसा नेता सामने आया जिसका दिल प्रेम और करुणा से भरा हुआ था। उसने पीड़ितों और गरीबों के लिए आवाज़ उठाई और अपने देशवासियों को एक महान उद्देश्य के लिए प्रेरित किया। एक ऐसा अध्याय लिखा जिसे इतिहास में कभी भूला नहीं जा सकता। ठीक उसी महीने रूस में लेनिन ने क्रांति की शुरुआत की, जिस महीने तुम्हारा जन्म हुआ, जिसने रसिया और साइबेरिया की सूरत ही बदल दी। और भारत में बापूजी, उनका प्रेम और बलिदान सबके लिए प्रेरणादायक था, भारतवासियों के दिलों में बस गया। बापूजी जेल में थे, फिर भी उनके शब्द, उनके विचार देश के कोने कोने में गूंज उठे। स्त्रियां, पुरुष, यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी अपने खोल से बाहर निकले और आज़ादी के सिपाही बन गए। आज भारत में हम इतिहास को बनते देख रहे हैं। ये सौभाग्य है कि तुम और मैं इस महान बदलाव के साक्षी हैं, और शायद इस नाटक में हमारा भी एक छोटा सा किरदार हो। चलिए आगे का हिस्सा रीड करते हैं। हाउ शैल वी बियर आवर सेल्फ इन दिस ग्रेट मूवमेंट? व्हाट पार्ट शैल वी प्ले इन इट? I cannot say what part will fall to our lot, but whatever it may be, let us remember that we can do nothing which may bring discredit to our cause of honor to our people, dishonor to our people. If we are to be India's soldiers, we have India's honor in our keeping, and that honor is a sacred trust. Often we may be in doubt as to what to do. It is no easy matter to decide what is right and what is wrong. One little test I shall ask you to apply whenever you are in doubt. It may help you. Never do
anything in secret or anything that you would wish to hide. Further, desire to hide anything means that you are afraid, and fear is bad thing and unworthy of you. Be brave, and all the rest follows. If you were brave, you will not fear and will not do anything which is the ashamed. You know that in our great freedom movement under Bapu's leadership, there is no room for secrecy or hiding. We have nothing to hide. We are not afraid of what we do and what we say. We work in the sun and the light. Even so, in our private lives, let us make friends with the sun and work in the light, and do nothing secretly or fiercely. Privacy is, of course, we may have and should have, but that is very different things from secrecy. And if you do so, my dear, you will grow up a child of the light, unafraid and serene and unruffled. Whatever may happen, I have written a very wrong letter to you, and yet there is so much I would like to tell you. How can a letter contain it? You are fortunate, I have said, in being a witness to this great struggle for the freedom that is going on in our country. You are also very fortunate in having a very brave and wonderful little woman for your mummies. And if you are ever in doubt or in trouble, you can have a better friend. Goodbye, little one, and may you grow up into a brave soldier in India's service. With all my love and good wishes. अब सवाल ये है कि इस महान आंदोलन में हमारा आचरण कैसा हो, हमारा क्या योगदान होगा। मैं ये नहीं कह सकता कि हमारी भूमिका क्या होगी, लेकिन जो भी हो, हमें यह याद रखना चाहिए कि हम ऐसा कुछ ना करें जिससे हमारे उद्देश्य को ठेस पहुँचे। क्या सही है और क्या गलत, ऐसे समय में एक छोटी सी कसौटी अपनाओ जो तुम्हें सही रास्ता दिखा सकती है। जब भी संशय हो, खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं छिप कर रहा हूँ? क्या ये ऐसा कुछ है जिसे मैं दुनिया से छिपाना चाहता हूँ? अगर हाँ, तो समझ लो ये डर में किया गया काम है, और डर में किया गया कोई भी काम गलत होता है और तुम्हारे योग्य नहीं है। बहादुर बनो, सच्चे बनो और उस राह पर चलो जहाँ ईमानदारी है। अगर तुम सच्चे हो तो बाकी सब खुद ब खुद तुम्हारे साथ चल पड़ेंगे। हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम में बापूजी की अगुवाई में छिपाने या चुप रहने की कोई जगह नहीं थी। हमें छिपाने की ज़रूरत नहीं है। हम जो कहते हैं, जो करते हैं, वो सब खुले में होता है, धूप में, उजाले में, यहाँ तक कि हमारी निजी ज़िंदगी में भी हमें सूरज का साथ देना है, खुले दिल से जीना है और कुछ भी ऐसा नहीं करना जिसे हमें छुपाना पड़े। हाँ, निजता ज़रूरी है और ये होनी भी चाहिए, लेकिन वो छुपाने से बिल्कुल अलग होती है। और अगर तुम ऐसा करोगे तो मेरी प्यारी बच्ची, तुम बनोगे उजाले की संतान, सच्चाई, बहादुरी और प्रकाश से भरे हुए इस देश के भविष्य। डरो मत, शांत और निश्चल रहो, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने तुम्हें बहुत लंबा पत्र लिखा है, लेकिन फिर भी बहुत सी बातें हैं जो मैं कहना चाहता हूँ। क्या एक चिट्ठी इतना सब कुछ समा सकता है?
तुम भाग्यशाली हो, जैसा मैंने कहा, कि तुम उस महान संघर्ष की गवाह बन रही हो जो हमारे देश की आज़ादी के लिए चल रहा है। तुम्हारी मम्मी भी एक बहादुर और अद्भुत महिला हैं और तुम बहुत भाग्यशाली हो कि वो तुम्हारी माँ हैं। अगर तुम्हें कभी संदेह हो या मुश्किल में फंस जाओ तो तुम उनकी जैसी दोस्त नहीं पा सकती। अलविदा प्यारी बेटी, दुआ है कि तुम बड़ी होकर भारत की सेवा में एक बहादुर सिपाही बनो। मेरी ढेर सारे प्यार और शुभकामनाओं के साथ। दोस्तों, एक पिता का अपनी बेटी को लिखा ये पत्र सिर्फ इतिहास नहीं है, ये हर माता पिता के लिए एक याद दिलाने वाली बात है कि हम अपने बच्चों से प्रेम, विश्वास और समझदारी से बात करते हैं तो हम उनके भीतर एक सोचने वाला, मजबूत और संवेदनशील इंसान तैयार करते हैं। तो आइए हम भी अपने बच्चों को केवल पढ़ना ही नहीं, उन्हें सुनना, समझना और अपने शब्दों से दिशा देना शुरू करें, क्योंकि एक चिट्ठी, एक बात, एक पल पूरी ज़िंदगी बना सकता है। तो बताइए दोस्तों।